Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. Hello students, so we are learning about the chapter exponents and powers, and in the previous lecture we have seen some laws and rules we are going to apply in this chapter, right? So in this lecture we are continuing this chapter exponent and power, and today we'll do some numerical questions based on the exponent and power. Okay, so ready? Let's see. So question number 1 is evaluate minus 2 by 7 to the power minus 4 multiplied by minus 5 by 7 to the power 2. So अभी तक हम लॉस क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं, उन्हें अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देख चुके हैं। अब हम इस सारी नॉलेज का अप्लाई करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में हमें एक से ज़्यादा लॉ या दो से ज़्यादा लॉ का भी अप्लाई करना पड़ जाए। हम स्टेप बाय स्टेप इन लॉस को अप्लाई करके अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो नाउ in this question we have different bases, so first we'll solve them individually. यहाँ पर बेस जो है वो डिफरेंट हैं और हमारे पास एज इन अभी इस कंडीशन के लिए कोई भी लॉ नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी पावर्स को पॉजिटिव बनाते हैं। पावर कैसे पॉजिटिव बना दी जाती है वो हम सीख चुके हैं। सिंपल, हमने इसका बेस जो है वो रेसिप्रोकल कर दिया। तो after reciprocating the base minus 2 by 7, I got 7 by minus 2, and this negative exponent will be converted to positive one. Now we have a multiply sign here, so I apply the multiply sign, and again I have written it as it is because in this we have the positive power. So now we'll solve this. Okay, so how we are going to solve this? Now in this case we know that 7 by minus 2 will be equals to minus 7 by 2, right? So it becomes minus 7 by 2 to the power 4 and minus 5 by 7 to the whole power 2. Now we are going to separate the powers to the individual numerator and denominator. So I did that here, minus 7 to the power 4 upon 2 to the power 4. हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? Again हमने वही सेम चीज़ यहाँ पर भी की। After solving this value, I know that minus 7 to the power 4 will be equals to 7 to the power 4 because the power here is, the exponent here is an even number. So I got it 7 to the power 4 multiply 5 to the power 2. ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ की हैं। पहले तो हमने इस माइनस 7 टू द पावर 4 को सिंप्लीफाई कर लिया और हमने दोनों न्यूमरेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक बेस जो है वो सेम है। कैसे? यहाँ पर भी 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 7 लिखा हुआ है। अब जब हमने पिछली क्लास में लॉस पढ़े थे तब हमने देखा था कि अगर डिवीजन के केस में बेस सेम होते हैं उस केस में जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, एक्सपोनेंट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो हमने वही किया कि यहाँ पर 7 to the power 4 था और 7 to the power 2 था डिनोमिनेटर में। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपोनेंट आई गॉट इट एज 7 to the power 2 only. Multiply by 5 to the power 2 and in the denominator we are remaining with the 2 to the power 4 only. Now we are going to solve this. So 7 power 2
is equals to 49. 5 to the power 2 will be equals to 25 and 2 to the power 4 will be equals to 16 in the denominator. So now we only need to multiply the value in the numerator. So I multiplied it and got the answer as 1225 by 16. So you can see हमने यहाँ पर डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट लॉज अप्लाई करे, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी हम उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले गए. क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता गया और हमने इजीली उसका आंसर फाइंड कर लिया. सो अगर हमें लॉस बहुत अच्छे से याद है जो कि हमें होने चाहिए, तो हम कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. So now we need to simplify these two values. अब इनको हमें simplify करना है. Again we'll apply the laws and simplify these values. So let's see the question number 1 solution. So now we have in this solution 2 to the power minus 1 multiplied by 5 to the power 1 and whole power minus 1. These whole thing divided by 5 to the power 1. एक ही चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. अब हम इन्हें वन बाय वन सॉल्व करेंगे. हम इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ये तो हम जानते हैं. तो हम सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 2 है इसकी पावर -1 है. पावर नेगेटिव फॉर्म में सॉल्व नहीं होती है, इसे हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल करके. सो हमने इस टू द पावर -1 को लिख दिया 1/2 एंड 1 पावर एज इन कुछ नहीं होती है, इसलिए हमने उसे हटा दिया. 5 to the power -1 becomes 1/5. So now we have another power -1 applied to the whole bracket. So I applied -1 here. Now divided by 5 to the power -1 becomes 5/1 to the power -1. ऐसे हम इसे लिख सकते हैं. तो अभी फ़िलहाल हमने इसे ऐसे ही लिखा है. आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है. तो 1/1 multiplied by 1 will be equals to 1 only. And 5 multiplied by 2 will be equals to 10. So I got the answer as 1/10 whole power -1 divided by this 5/1 becomes 1/5. पावर नेगेटिव थी तो बेस का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे पावर पॉजिटिव हो गई. पावर 1 थी जिसे हमें लिखने की ज़रूरत अब नहीं है. So after solving this, now we know that again we have the negative power here, so we'll again reciprocal the base. So I got the base is 10/1. So 10/1 divided by 1/5. आप सिंपल यहाँ पर चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो हम उन्हें डिवाइड कर लेंगे. So 10 divided by 1/5. रैशनल नंबर्स कैसे डिवाइड करते हैं वो अब हम जानते हैं कि हम इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जो डिवाइज़र है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. वही किया हमने. 10 this divide sign becomes multiply sign and this 1/5 is becoming here 5 only. So now 10 multiplied by 5 will be equals to 50. So easy था क्वेश्चन. सिर्फ हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है. जो हमने किया, जहाँ लॉ अप्लाई हो रहा था वो हमने वहाँ पर अप्लाई किया. सो नाउ द सॉल्यूशन 2. In this case we have 4 to the power -1. So again we'll simplify this by reciprocating the base. So this 4 to the power -1 becomes 1/4. This 8 to the power -1 becomes 1/8 and we have the plus sign in between, so I applied it here. Now division sign is same. So this 2/3 to the power -1 becomes 3/2. Now
we'll first to solve this bracket we know that we need to take the LCM, and after taking the LCM I got the value, and expressing the denominator as LCM I got the value as 2 plus 1 by 8 divided by 3 by 2. इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें मिला 2 plus 1 by 8, डिवाइड साइन एज इट इज है, and after divide sign we have 3 by 2 as the divisor. Now we need to divide these two values, so this becomes 3 by 8 here divided by 3 by 2. Rational number divide करना very easy, right? We'll wanna change this division sign to multiplication sign and do the reciprocal of the divisor. So I did that. So 3 by 8 multiply by 2 by 3 here, and अब divide करना multiply करना बहुत easy है यहाँ पर. So you can see we have two similar bases here. So I am going to cancel it out. So I am 3 दोनों के कॉमन फैक्टर्स थे या सेम था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं. अगेन 2 और 8 जो है इनका भी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे. सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4. सो इन दिस मैनर आई गॉट द आंसर एज 1 by 4. So this is how I solved the question number 2. Very easy, right? Let's check the next questions. So now we need to solve these 3 questions, and again we'll apply the laws and solve these questions, okay? So question number 1 solution is, so now we have the question 2 to the power 0, and we know that anything to the power 0 will become 1. So this 2 to the power 0 become 1 here. ये हमारा लॉ हम पढ़ चुके हैं. अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 होती है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए ये 2 की पावर 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गया. नाउ 3 टू द पावर -1 पावर नेगेटिव है, हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे. सो हमने वही किया. सो आई गॉट 1 plus 1 by 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2. यहाँ पर अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में रैशनल नंबर्स हैं तो हमें उनका LCM लेना पड़ेगा. आफ्टर गेटिंग द LCM as 3 here, I need to express the denominator as 3 for both the numbers. इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं जो हम पहले सीख चुके हैं. इसके नीचे डिनोमिनेटर हमें 3 बनाना था, तो हमने नीचे 3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे. और एज एन यहाँ पर 3 ऑलरेडी था तो यहाँ पर कुछ और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए हमने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई किया है. सो I got it as 3 by 3 plus 1 by 3 multiply by 3 to the power 3. Now we have the same denominators here, so we need to add the numerators only. So 3 plus 1 becomes 4, and in the denominator we have 3 multiply by 3 to the power 2. Now हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते थे कि हम 3 को सॉल्व कर लें, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम मल्टीप्लाई कर दें. बट हम यहाँ पर लॉस पढ़ चुके हैं, तो लॉस कैसे करते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवीजन का केस अप्लाई हो रहा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट हैं. तो हमने यहाँ पर एक लॉ अप्लाई किया कि अगर बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती हैं और डिवीजन का केस होता है, उस कंडीशन में हम बेस को एक बार लिख के दोनों एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो हमने यहाँ पर वही किया. 4 हमने एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लिकेशन साइन हमने एज इट इज़ लिखा. सो नाउ वी हैव 3 हियर एंड हियर ओनली. सो हियर द पावर इज़ 2 एंड हियर द पावर इज़ 1. सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. सो नाउ आई गॉट द पावर एज 1 ओनली. 2 minus 1 will be equals to 1, very easy.
So 4 multiplied by 3 will be equals to 12. So this is how I got the answer is 12. Easy, right? Let's check the second solution. So now solution number 2 is here. In this question we have 2 to the power minus 1 first. So first we are going to reciprocate the base to make the power positive. So we got 1 by 2, multiply sign and again 3 to the power minus 1. So I reciprocate the base, it becomes 1 by 3 here. Divide sign and 2 to the power minus 3 becomes 1 by 2 to the power 3. Now I don't need to tell that how it become like this. Now again we are multiplying here. So 1 multiplied by 1 will be equals to 1, and in the denominator we have 2 and 3. So 2 multiplied by 3 will be equals to 6. Divide sign. अब यहाँ पर एक रैशनल नंबर की दो वैल्यू थी तो हम दोनों में उसे अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमने वही किया. अब इसे कैसे सॉल्व करना है, हम सिर्फ इस सिंपल पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. 1 बाई 6 एज इट इज़ लिखा है, डिवाइड साइन एज इट इज़ लिखा है. 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा. अब दो रैशनल नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवाइज़र का निकालेंगे हम रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो हमने वही किया. 1 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 कैसे हुआ, डिवाइड साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल अगर हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 8. अब सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना था तो हमने कर दिया. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 is equals to 8 and in the denominator we have 6 only. So I got the answer as 8 by 6. But we can also convert this value to its standard form by dividing them with their common factor. So we know the common factor here is 2. So I divided the numerator and denominator by 2 and got the answer as 4 by 3. So we got the answer also here. Now let's check this next solution, solution number 3. So in this question we have 1 by 2 to the power minus 2 plus 1 by 3 to the power minus 2 plus 1 by 4 to the power minus 2. हम सारी पावर्स को पहले पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेते हैं. तो कैसे करते हैं, सबका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर्स अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. 1 by 2 का रेसिप्रोकल किया, 2 by 1 minus 2 becomes 2. 1 by 3 का रेसिप्रोकल किया, 3 by 1, here minus 2 becomes 2. और 1 by 4 का रेसिप्रोकल किया, वो हो गया 4 by 1 और minus 2 जो थी वो होगी 2. अब सबके बीच में एडिशन का साइन है तो एज एन यहाँ पर कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम इंडिविजुअल इनको सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसे ऐड कर देंगे. जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 की पावर 2, यहाँ बचेगा 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड यहाँ बचेगा 4 रेज़ टू द पावर 2. 2 रेज़ टू द पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 4, 3 रेज़ टू द पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 9 एंड 4 रेज़ टू द पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 16. क्या करना है, सबके बीच में एडिशन साइन है, सबको ऐड कर देते हैं. So after adding I got the answer is 29. Very easy question, right? दिखने में हमें लग रहा था कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट जब हमने उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो वो बहुत इजी मिला हमें, राइट? Now let's see what we can do with this question. So question is saying by what number should 1 by 3 to the power minus 1 be multiplied so that the product is 5 by 9 to the power minus 1. स्टेटमेंट को मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम जानते हैं. हम वही करेंगे
पहले इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमें करना है। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि वो जो नंबर है वो है x. So let the required number be x here. Then the statement becomes x multiplied by 1 by 3 to the power minus 1 is equals to minus 5 by 9 to whole power minus 1. हमने मान लिया कि वो जो नंबर है वो x है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा था हमने उस अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर दिया कि हमने x को मल्टीप्लाई किया 1 बाई 3 की पावर -1 से, तो हमारा आंसर आना चाहिए -5 बाई 9 टू द पावर -1. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे या फिर हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. तो -1 को पॉजिटिव बनाया हमने, तो -1 को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हम जानते हैं हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, हमने कर दिया. यहाँ पर भी हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, सो आई गॉट इट एज 9 बाय -5. इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया मैंने. अब सिंपल जैसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम वही करेंगे. यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने कर दिया 3 into x will be equals to 3x and there is 1 in the denominator which means nothing in the denominator, and on the right hand side I have -9 by 5. अब आप जानते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. So we need to find the value of x, so we need to transpose this 3 to the right hand side. यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के केस में था तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ न्यूमरेटर में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में. सो आई गॉट 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -9 बाय 5. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पर कैंसल आउट कर सकते हैं 3 और 9 को, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर है हमारे पास. तो जब हमने इसे कैंसिल किया तो हमें मिला 3 and 1. So in the numerator we need to multiply -3 and 1. So the answer here is -3. In the denominator we need to multiply 1 and 5. So I got the answer is 5. हमारा जो नंबर है वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पर हमें ऐसे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. So we can say the required number is -3 by 5. क्योंकि हम इन दिस स्टार्टिंग मानकर चले थे कि वो जो नंबर है वो x है और हमें को x की वैल्यू क्या मिल रही है -3 by 5. सो हमारा जो नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो है -3 by 5. सो वी कैन सी अगर हमें लॉस पता है, हमें चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है वो हमें आता है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Very easy question. Now let's check this question. By what number should -3 by 5 raised to the power 3 be divided so that the quotient is 9 by 4 to the power -2? क्या बोल रहा है, इस नंबर को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन आए वो ये आए. सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि लेट द नंबर बी x. सपोज करते हैं हम कि वो नंबर जो है वो x है और हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट में. सो बाय डूइंग दिस वी गॉट -3 by 2 to the power -3 divided by x is equals to 9 by 4 to the power -2. Now we need to solve this. So for solving this I transpose this x to the right hand side. So I got -2 by 3 to the power 3. Here हमने दो चीज़ें साथ में करी है, हमने इस -3 को भी सिंप्लीफाई कर लिया है और इस x को यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया. यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. और इस -2 को जब हमने चेंज किया तो वो हो गया 2. तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4 by 9 to the power 2.
अब सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर की पावर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसे न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर देते हैं। दोनों ही साइड हमने वही किया। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सो आई गॉट इट हियर इज -8/27 equals to 16/81 multiplied by x. Now we need to find the value of x. So we'll transpose the values. So after transposing I got -8/27 multiplied by 81/16. कैसे आया? डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, और जो न्यूमरेटर है वो यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो जानते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिली, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे मींस इनको कैंसिल आउट कर लेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सारी चीज़ें करने के बाद हमें वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है -3/2। इसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एट द एंड आपका आंसर भी -3/2 ही आएगा। So we can say that the required number will be -3/2। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस नंबर को -3/2 से डिवाइड करेंगे तब हमें ये वाला नंबर एज अ क्वोशिएंट मिल जाएगा। So that's it for today's lecture. We are going to continue with this chapter in our next part. So how do you all know when will our next lecture come? So for this you have to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you.